good to catch up again. Today I'll take you to one of Singapore's newly built malls, that is Geneo Mall, which is beautifully designed in a stunning cathedral style architecture. What makes it more interesting is that the entire cathedral structure is made of wood, giving the place a warm and majestic feel. To get here, you need to take the yellow line of the MRT, also known as the Circle Line. I started my journey from Harbourfront MRT and then transferred to the Circle Line to reach Kentridge MRT station. So the MRT has arrived, as you can see. It actually not that far from Harbourfront. To make your metro journey smoother and faster, I would recommend that you can download the Metro SG app. That app would help you easily navigate the MRT routes and lines, because there are few lines like red line, yellow line, purple line and brown line and green line. So this app will help you, and there are many other apps and options available as well, so you can choose whatever works best for you. That's completely up to you. So now I have reached my destination, and from here now you can see the unique wooden cathedral style design and great place to just sit back and relax. And you don't have to worry about the heat, because the area has huge ceiling fans installed, so it stays cool and even more warm days, even on warm days. So plus you will notice plenty of plants and trees placed all around, so which not only help reduce the heat but also give you a refreshing close to nature vibe. So I would say a lot of people come here mainly to admire the new architecture, but we are here to explore the entire place so that you can get a complete idea what is interesting and what is useful, and whether this place is truly worth visiting or not. To stay tuned with me in this video and let's explore Geneo Mall together. So I would say now, if you are wondering while watching this video, like what is so special about this mall that sets it apart from the rest, I would say, well, Geneo Mall has been made famous because of its futuristic design that beautifully blends science, art and nature, something that really connects with today's younger generation. जैसे आप देख रहे हो ना, ये पूरा जो सीलिंग है जो उन्होंने कैथेड्रल स्टाइल पे पूरा डिज़ाइन किया है, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली डिज़ाइंड. सो मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ ये जो एरिया है ना जो आप देख रहे हो, ये सीलिंग वुडन पूरा, बस इस एरिया के लिए स्पेसिफिकली ये मॉल फेमस है. देयर इज़ लकिन कॉफ़ी विच इज़ अ चाइनीज़ कॉफ़ी ब्रांड, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है. और बाकी ब्रांड्स कॉफ़ी के स्पेसिफिकली इस मॉल के अंदर नहीं हैं, बट डेफिनेटली नियर अराउंड आपको मिल जाएंगे. और ये जो पार्ट है ना, जो ये पर्टिकुलर ये एरिया है, बस ये ही इस मॉल को बाकी मॉल्स से आउटस्टैंडिंग बनाता है. और यहाँ पे पास में इस मॉल से, जैसे MRT स्टेशन से ये मॉल अंदर ही कनेक्टेड है. तो अभी मैंने लकिन कॉफ़ी में मैं अंदर एंटर कर चुकी हूँ, और मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा सा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो कुछ कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करते हैं. तो कॉफ़ी के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे लकिन कॉफ़ी ही दिखी, तो मैंने कॉफ़ी ले ली है ऑलरेडी.
और ये जो आपने QR कोड देखा था, इसको आपको काउंटर पे ले जाके मशीन में स्कैन करके देन फिर आप अपना ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। मैंने अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया था और चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि अगल बगल जो लोग बैठे हैं वो आपके कैमरा में आना चाह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपना कुछ काम वगैरह भी मैंने किया 20 मिनट के लिए। टाइम टू लीव। तो बाहर की तरफ हम निकलेंगे और वापस से उसी मेन एरिया में हम गए हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और क्या क्या आप देख सकते हो अपने विजिट में। तो ये एरिया जो बेसिकली जो मॉल है ना, जेनियो मॉल, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, अगर आप टूरिस्ट हैं और स्पेसिफिकली आप इस मॉल के अंदर आ रहे हैं, तो कीप दैट इन माइंड दैट यू विल ओनली गेट गुड पिक्चर्स। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको एक अच्छा कैथेड्रल स्टाइल का एक आर्किटेक्चर मिल सकता है जो आपकी फ़ोटोज़ को आउटस्टैंडिंग बना देगा। बाकी अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ कुछ शॉपिंग करेंगे, तो शॉपिंग के ऑप्शंस नहीं हैं और कॉफ़ी के और खाने के ऑप्शंस है। खाने में आपको सबवे वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है और अदर लोकल फूड आइटम्स भी हैं, जैसे कि बेकरी के लिए टोस्ट बॉक्स। और टोस्ट बॉक्स एक्चुअली यहाँ का लोकल ब्रांड है जो बेकरी की चीज़ें सब बनाता है खाने पीने की, तो वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। वो वीडियो में आगे आप ऑलरेडी देखेंगे कि वो वहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे आप क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। सिंगापुर में एक्चुअली कॉफ़ी, बेकरी फूड ये सब बहुत चलता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और देख रही थी पूरा ऑल अराउंड कि और क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। साइड में कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप अगर खाना वगैरह खाना प्रेफर करेंगे तो इटालियन रेस्टोरेंट था वहाँ पे, वो जा सकते हैं। इंडियन खाने का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो अगर आप इंडियन खाना पसंद करते हैं, आप टूरिस्ट हैं और सिंगापुर आए हैं अपनी ट्रिप के लिए, और फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडियन खाना ही खाना चाहते हैं, तो रेस कोर्स रोड, वहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना और बंगाली और आई थिंक गुजराती खाना भी वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं लाइन से, तो आप जब उस लाइन में जाएंगे ना, तो आप पूरा वॉक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इस चीज़ पे हम आगे वीडियो डेफिनेटली बनाने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि बेस्ट होटल्स जो आपको अफोर्डेबल रेट्स में मिले और इजी एक्सेस हो इंडियन रेस्टोरेंट से आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे, वो आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन जब आप सर्च करते होंगे डेफिनेटली ऑनलाइन सब कुछ दिया रहता है, बट येस ऑनलाइन आप उतना डिटेल आपको नहीं मिलेगी जो आपको वीडियोस के थ्रू मिलने वाली है, बिकॉज़ हम यहीं रह रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या इजी आपको मिलेगा, कितना होटल्स के क्या क्या रेट्स चल रहे हैं पर डे के अकॉर्डिंग, आपको क्या चीपर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस को भी आप देखते रहिए और इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, बिकॉज़ आप पूरा आइडिया इस वीडियो में अपने घर के कंफर्ट जोन से बैठकर ले सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली इस मॉल में देखने लायक है, और आप अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। आजकल सब चीज़ें सोशल मीडिया पे बेस्ड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सजेशन यही दूंगी कि आप इसको कंसीडर करें।
और अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बिकॉज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने मेट्रो ली थी, बट इन केस आप बाहर व्यू लेकर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बस को प्रेफर कर सकते हैं। और बस वगैरह आपको कहाँ पे ड्रॉप करने वाली है, जब हम ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं मेन एरिया में, हम बाहर निकलने, MRT स्टेशन का ये बाहर का एरिया है, मतलब यहाँ से बाहर जाएंगे हम, तो यहाँ पे साइड में ना एक बस स्टॉप बना है। वहाँ पे बसेस के नंबर्स दिए रहते हैं। नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी बस में आपको आना है, कौन सी बस से आपको वापस जाना है। ये जो लोग, मतलब अभी तो यहाँ पे एक ही पर्सन बैठा है, ये बस अपनी बस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो बस का साइन भी बना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कैब्स लेते हो, प्राइवेट टैक्सीज लेते हो, तो वो डेफिनेटली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने वाली है, बिकॉज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके पैसे और जो प्राइवेट टैक्सीज हैं उसके पैसों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि पैसे बचाइए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए। बट इन केस अगर आप कहीं भटक गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है कैसे जाना है, तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप टैक्सीज प्रेफर कर सकते हैं। बट ये एरिया होने वाला है, जब आप बस से आएंगे तो बस आपको वहीं पे ड्रॉप करेगी। यहाँ से आप बाय वॉक अंदर आएंगे जेनियो मॉल के अंदर। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ खास एंट्रेंस तो नहीं है, बट जो आर्किटेक्चर अंदर बना है बस वही एक चीज़ है जो अब आपको अपनी लिस्ट में आपको कंसीडर करना है कि नहीं करना है, दैट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सिंगापुर आए हैं और सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो देयर आर मैनी बेस्ट एंड ब्यूटीफुल ऑप्शंस, ठीक है, जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। ऑनलाइन सिर्फ आपको लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी, लिमिटेड लिस्ट मिलेगी। MBS हो गया, सुपर ट्रीज़ हो गए, गार्डन्स बाय द बे, ज़ू एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली। बट उसके अलावा भी ऐसे साइट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं और ऑनलाइन इतना फेमस नहीं है। तो ये बाहर का एरिया है जो आप देख रहे हैं ना अभी, ये ऑलरेडी बाहर का व्यू है। और धूप हो रखी थी जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था, मिक्स डे टाइम में थोड़ी क्लैरिटी होती है वीडियो में और आपको समझ में भी आएगा। रात में आपको मैं अगर बाहर का व्यू दिखाऊंगी तो आप उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली दिन में ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो पूरा वीडियो इसलिए भी रिकॉर्ड किया है बाहर का और MRT का और बस का, कि आपको कंप्लीट आइडिया हो पाए। अदरवाइज़ वीडियो बनाने का मुझे लगता नहीं कोई पर्पस सॉल्व होगा मेरा, अगर आपको पता नहीं होगा कि कैसे क्या है इसमें और कैसे कैसे आ सकते हैं। मूविट एक ऐप है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें मैं दोबारा बता रही हूँ। मूविट एक ऐप है, ऑरेंज कलर का उसका आइकन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें अपनी करंट लोकेशन, मतलब जब आप सिंगापुर आएंगे तब वो लोकेशन डालिए, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जहां आपको जाना है, वो आपको शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट रूट्स का ऑलरेडी ऑप्शंस दे देंगे। आपको जो सही लग रहा है वो रूट के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, उसमें सब कुछ दिया रहता है और वो आपको नोटिफाई भी करेगा कि कहाँ पे आपको उतरना है। तो ये टोस्ट बॉक्स था, अभी आपने वीडियो में जस्ट देखा। टोस्ट बॉक्स यहाँ का लोकल बेकरी ब्रांड है, ब्रेड टॉक भी है, टोस्ट बॉक्स भी है और दोनों ही में बहुत ही अच्छे बेकरी ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो आप जब सिंगापुर आते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। आगे मैं आपको और क्लोजली दिखाऊंगी कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या मिलता है, तो जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि आप मतलब वहाँ पे आपको ब्रेड टॉक ट्राई करना है कि नहीं करना है, टोस्ट बॉक्स ट्राई करना है कि नहीं करना है। तो बेसिकली मैं अभी ब्रेड टॉक के बारे में दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह के स्नैक्स यहाँ पे रहते हैं और लगभग सेम ही स्नैक्स टोस्ट बॉक्स में भी रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, अदरवाइज़ प्राइस और वैरायटी लगभग सेम ही रहती है। और भी यहाँ के अदर लोकल ब्रांड्स हैं।
now, time to go. Thanks for watching. Stay safe, stay blessed, and stay healthy. Bye bye. Take care.